Okay, so on previous lectures we have discussed grammars, and we have seen the concepts related to the grammars, the how we can derive strings from the grammar, and the set of the strings which are derivable from a grammar is called the language generated by that grammar. We have seen certain examples related to the grammars. Okay, then we have seen the Chomsky hierarchy, in which we have discussed the structure of production for each kind of grammar available in the Chomsky hierarchy. There are 4 types of grammars. This was type 0. This is the phrase structure or recursively enumerable grammar. Second was the type 1. It was the context sensitive. It was the context sensitive grammar. In type 2 it was the context free grammar, and type 3 it was the regular grammar. Then we have seen how we can identify the types of grammar using the Chomsky hierarchy. Are you able to see the screen, students? सर पहले वाली दिख रही है अभी. Now you are able to see the screen? Yes sir. Okay. So all these we have discussed. So identify the type if we see that we have 2 tools for the regular languages, that were the FA and regular expression. Okay, and we can convert our FA to the regular expression using the Arden's theorem, and we can convert our regular expression to the FAs using the Kleen's theorem. Means both tools are convertible to each other. Now we are going to discuss the regular grammar, which is another tool for representing the regular languages. So it is the regular grammars. Now today we will discuss, our first agenda is to construct a regular grammar corresponding to a given FA. So FA is with us. We will convert this FA to the regular grammar. So how we can do it, this we will see. Okay, then we will see the reverse of it, construction of FA for a given regular grammar. So in this case regular grammar will be with us, and we will convert it to the corresponding FA. So we will discuss how we can do it. Okay, if we discuss these 2 methodologies, so we will be able to convert all 3 tools to each other. So regular grammar से FA और FA से regular grammar तो हम discuss करेंगे ही. Suppose हम regular expression से रेगुलर ग्रामर चाहिए, तो रेगुलर एक्सप्रेशन से क्लीन थ्योरम का यूज करके हम एफए बनाएंगे और एफए से रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर लेंगे. सपोज हमें रेगुलर ग्रामर से रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए, तो रेगुलर ग्रामर हमारे पास है, पहले उसको हम एफए में कन्वर्ट करेंगे, फिर आर्डन्स थ्योरम का यूज करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे. सो ऑल 3 टूल्स अवेलेबल फॉर द रेगुलर लैंग्वेजेस will be convertible to each other. We can convert regular grammar to FA, or FA to regular grammar, FA to regular expression, or regular expression to FA, and similarly regular expression to regular grammar, or regular grammar to the regular expression. I hope it is clear to everyone now, class. Is it clear, class? Can we move forward? Yes, sir. So first point, the construction of regular grammar for a given FA. So FA is given to us. We will convert this given FA to the corresponding grammar. So FA हमें मालूम है, so we assume that M is our FA. So this will be a set of 5 things: Q, sigma, delta, Q0, and F. So Q is consisting of these n+1 states from Q0 to Qn. There is alphabet, delta, transition function. This is known to us क्योंकि FA हमारे पास होगा तो ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा हमें नोन होगा. Q0 कौन सी स्टार्ट स्टेट होगी ये हमें मालूम होगा, और इन सारी स्टेट्स में से कौन कौन सी स्टेट्स फाइनल स्टेट्स हैं वो इस सेट F के अंदर आएंगी. इज इट? तो इस तरह से FA हमें नोन है. अब ये FA जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दैट लैंग्वेज इज L of M. वी आर कॉलिंग दैट लैंग्वेज एज L of M. सो इट इज द लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस FA. नाउ सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए और जनरेट करने के लिए नाउ वी विल बी राइटिंग ए ग्रामर. सो दैट ग्रामर वी विल बी राइटिंग एज G is equal to A0, A1, A2 and so on up till AN sigma P and A. ग्रामर क्या होती है हमारी? इट इज VN सिग्मा P एंड S. इज इट? ऐसी तो होती VN सिग्मा P एंड S. तो सिग्मा तो वही हो गया जो अल्फाबेट है हमारा. P अभी हम फाइंड आउट करेंगे.
A0 will be the start symbol, जो कुछ भी यहाँ आया that is our start variable. So this is the start variable is A0. और ये जो हमारा set of variables आया है Vn, ये कैसे आया? अगर आप ध्यान से देखें तो M और G में कंपेयर करें तो जितनी इसमें स्टेट्स हैं FA में Q0 से लेके Qn तक, हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, अपने ग्रामर में एक वेरिएबल बनाया. Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल A0, Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल A0, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल A1, सिमिलरली Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग A2 एंड सो ऑन, Qn के कॉरस्पॉन्डिंग AN. सो हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल मैंने बनाया, और जो मेरी स्टार्ट स्टेट है Q0, जो FA की स्टार्ट स्टेट है Q0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल A0 है, दैट इज माय स्टार्ट variable, that is my start variable, that is a special variable from where I will start the derivation of my strings, is it? So in this manner अगर आप देखें तो अगर मुझे set of states मालूम है तो मुझे set of variables पता चल गया. अगर मुझे सिग्मा मालूम है तो सिग्मा यहाँ पे as it is आएगा, और अगर ये सब मालूम है, मुझे start state मालूम है, तो मुझे start variable भी पता चल गया, is it? अब रह क्या गया? केवल P, set of production. तो this set of production we will be finding with the help of our transition function delta. And how we will be finding it? This P will be defined by following three rules. So these are three rules, 1, 2 and 3. So we'll see these rules one by one. So rule number 1 says that AI to AAJ, AI to AAJ is included in P. मीन्स हम इस तरह का एक प्रोडक्शन रूल अपने P में इंक्लूड करेंगे इफ डेल्टा QIA इज इक्वल टू QJ. यानी कि अगर मेरे पास कहीं कोई स्टेट है QI और ऑन A फ्रॉम QI आई एम मूविंग टू QJ, अनदर स्टेट. सो व्हाट आई विल डू, QI के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा हुआ? AI. AI, ओके. ऑन A आई एम मूविंग, सो ऑन A I will move. कहाँ पे मूव करना? QJ. QJ के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है? AJ. सो AJ पे मूव कर जाऊंगा. यानी कि QI से अगर QJ में A ट्रांजिशन पे जा रहा हूँ, सो AI से on A I will move to AJ. So this kind of production I will be including into the P, provided this QJ is not a final state. So this QJ should not be a final state. अगर ये final state नहीं है तो मैं इस टाइप का एक प्रोडक्शन इंक्लूड करूंगा. Is it clear class? पहला पॉइंट क्लियर है? क्लास, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Okay. Now we come to the second one. Now two productions of the form AI to AAJ and AI to A are included in P if delta QIA is equal to QJ belonging to F. Again देखिए ऊपर और नीचे वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम. डेल्टा QIA is equal to QJ, यहाँ भी डेल्टा QIA is equal to QJ, यानी कि QI से on A I am transiting to QJ. अगर QJ मेरी फाइनल स्टेट नहीं है, यानी कि पहला वाला, तो मैं एक प्रोडक्शन AI to AAJ इसको इंक्लूड करूंगा. लेकिन अगर ये QJ मेरी सपोज फाइनल स्टेट है, अगर ये मेरी फाइनल स्टेट है, तो AI to AAJ ये तो इंक्लूड होगा ही होगा, साथ में AI से A एक प्रोडक्शन ये और इंक्लूड हो जाएगा. यानी कि QI के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है AI, और जिस अल्फाबेट पे मैं ट्रांजिट कर रहा हूं वो अल्फाबेट, दिस प्रोडक्शन विल आल्सो बी इंक्लूडेड. यानी कि अगर QI से QJ पर मैं ऑन A ट्रांजिट कर रहा हूं तो एक प्रोडक्शन AI to AAJ तो इंक्लूड होगा ही होगा. अगर QJ फाइनल स्टेट नहीं है तो केवल यहीं पे छोड़ देंगे. अगर QJ फाइनल स्टेट है तो साथ में AI to A, this production will also be included. This is point number 2. I hope both points are clear to you. Now come on the third one, which is a special one, A0, which is the variable corresponding to the start state, Q0 के corresponding variable, is it? So A0 to epsilon, we will include this production if Q0 is also the final state. Means अगर मेरी start state ही final state हो, so it is Q0, it is the start state as well as it is the final state. अगर ये final state भी है
सो A0 इसके corresponding जो वेरिएबल होगा A0, उससे मैं एप्सिलॉन ड्राइव करूंगा। क्यों? क्योंकि नल भी डेरिवेबल होगा। अदरवाइज कोई नल प्रोडक्शन मेरे रेगुलर ग्रामर में अलाउड नहीं है, बट ऑलवेज S to null is allowed just to include null into the language. Is it? So that's why अगर मेरी Q0 स्टार्ट स्टेट है और ये फाइनल स्टेट भी है, so I will include this A0 to epsilon into my grammar. So these are the three rules on the basis of which we will define P from the delta. Delta से हम P find out करेंगे. I hope this process is clear. अगर process clear है, then we'll go for examples. Class, can we go for Yes, sir. examples? Okay. Your F given to you. Okay. आप देखिए F दिया हुआ n. स्टेट्स कौन कौन सी है? Q0 और Q1 दो स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स आ गई हैं। A और B मेरा अल्फाबेट सिंबल्स हैं। डेल्टा मेरा ट्रांजिशन फंक्शन FA दिया हुआ है, तो इससे मुझे मालूम है कि किस स्टेट से किस सिंबल पे कहाँ ट्रांजिट करना है। Q0 मेरी स्टार्ट स्टेट है, देखिए वो FA से भी पता चल रही है मुझे, और Q1 मेरी फाइनल स्टेट है, वो यहाँ भी लिखा हुआ है और FA से भी पता चल रहा है। इज इट? सो दिस FA इज नोन टू मी। कैन यू टेल मी द लैंग्वेज ऑफ दिस FA? L of M is all words. Just tell me, class. All words Ending with A. yes ending with A. It is our famous example. We always take this example with A. All words ending with A. अब मुझे क्या करना है? इसे ग्रामर में कन्वर्ट करना है. So corresponding to M, I will be writing my grammar G. G is equal to what? Vn सिग्मा P. सबसे पहले Vn में कौन से वेरिएबल्स होंगे? हर स्टेट के corresponding एक एक वेरिएबल होगा, या दो स्टेट है तो दो वेरिएबल होंगे। इज इट? मेरा दो वेरिएबल कौन कौन से हुए? A0 and A1. A0 corresponding to Q0, A1 corresponding to Q1. Then sigma will be the same, AB, then P, set of production, and S will be what? S will starting variable will be the variable corresponding to the start state. Q0 के corresponding variable, Q0 के corresponding variable मेरा क्या है? A0. So this A0 will be my S. It will be the start variable. So this will be my G. अब इस G में मुझे सब कुछ मालूम है, केवल P फाइंड। अब मैं क्या करूंगा? एक एक करके जो मेरे FA में ट्रांजिशंस हैं उनको एक्सेस करूंगा। तो सबसे पहला ट्रांजिशन मैं कर रहा हूँ Q0 on B is coming to Q0. Q0 से Q0 पे ही आ रहे हैं B पर। ओके, Q0 का कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या है? A0. सो A0 से मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? Q0 यानी कि A0 पे मूव करेंगे on B. सो इट विल बी B A0. आई होप इट इज क्लियर। इस ट्रांजिशन को मैंने प्रोसेस किया है। Q0 on B is moving to Q0. So Q0 यानी कि A0 on B I am moving to A0. So A0 on B I am moving to A0. So this is the first one. Okay. Then similarly मैं इसको अगला देखूंगा। Q0 on A is moving to Q1. Okay. Q0 on A is moving to Q1. So Q0 यानी कि A0 का ही प्रोडक्शन होगा, ठीक है, लेकिन किस पर है? आपकी बार A पर है। So I will write A here. और कहाँ जा रहा हूँ मैं? Q1 पे जा रहा हूँ। Q1 के corresponding वेरिएबल मेरा क्या है? A1. Q1 के corresponding वेरिएबल मेरा क्या है? A1. So it will be A1. अब लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। Q0 से A पर मैं Q1 जा रहा हूँ, बट Q1 यहाँ मेरी फाइनल स्टेट भी है। फाइनल स्टेट भी है, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा? रूल 2। पहली बार में जब मैंने B पे किया था तो कौन सा रूल लगाया था? रूल 1 लगाया था, क्योंकि Q0 फाइनल स्टेट नहीं थी। I was not reaching to a final state, but in this case I am reaching to a final state, तो my rule number 2 will be applicable. So A0 to A1 तो आएगा ही आएगा, साथ में A0 to A भी आएगा। So A0 to A भी आएगा। So ये दो प्रोडक्शन मेरे ऐड हुए सेकंड रूल की वजह से, ठीक है। ये प्रोडक्शन मेरा ऐड हुआ जब मैंने इस ट्रांजिशन को प्रोसेस किया और रूल नंबर 1 अप्लाई किया। आई होप इट इज क्लियर क्लास। कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सिंपल है प्रोसेस, बहुत टफ नहीं है। A1, अब देखिए मैं Q1 के जो ट्रांजिशन है, अब Q0 के दोनों ट्रांजिशन B वाला भी A वाला भी मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। अब Q1 के दोनों ट्रांजिशन में प्रोसेस करूंगा। Q1 ऑन A, सबसे पहले Q1 ऑन B ले लेते हैं। चलिए
So Q1 on B is going to Q0. So इसलिए Q1 से शुरू हो रहा है तो इसलिए मेरा A1 वेरिएबल आ गया. Is it? On B I am moving, so I will be writing here B. Is it? उसके बाद कहाँ जा रहा हूँ? Q0 पे जा रहा हूँ, यानी कि A0. So B A0. Is it? तो ये मेरा ये वाला ट्रांजिशन प्रोसेस हो गया. अब अगला ट्रांजिशन प्रोसेस करता हूँ Q1 on A to Q1 itself. So Q1 से जाना यानी A1 से A1 पे ही जाना है. Q1 से Q1 पे यानी कि A1 से A1 पे ही जाना है on A. So it will be A1. Okay. And oblique A भी करूंगा. क्यों? क्योंकि Q1 पे जब पहुंच रहा हूँ, जब देखिए Q0 पे पहुंच रहा था तो ये नॉन फाइनल स्टेट थी, इसीलिए मैंने यहाँ B ऐड नहीं किया, केवल B A0 ऐड किया. लेकिन जब Q1 से on A Q1 पे आ रहा हूँ तो I am coming back to a final state. So I am reaching to a final state. So A1 to A1 तो होगा ही होगा, साथ में A1 to A भी होगा. So this will also be included. So सारे के सारे जो ट्रांजिशंस थे इसके डेल्टा के वो मैंने प्रोसेस कर लिए और मेरे उसके corresponding सारे के सारे प्रोडक्शंस बन गए. So this is the set of productions for the corresponding grammar which is representing the same language as defined by this FAM. Is it clear, class? So this is the process. Simple है process. Is it clear? यस सर. Okay. सर अब प्रोसेस तो हमने कर लिया, लेकिन अब ये जो हमारी ग्रामर है, ये ग्रामर वास्तव में जो हमारा FA है उसी की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही. दिस वी हैव टू चेक, दिस वी हैव टू इश्यू. सो लेट अस सी कि आपकी ये जो ग्रामर है कौन से वर्ड्स जनरेट कर रही है. आप देखिए, चूंकि A0 आपका स्टार्ट सिंबल है, सबसे पहले आप A0 से स्टार्ट करेंगे. अगर आपके पास ऑप्शन है या तो ये लगाएं या ये प्रोडक्शन यूज करें या ये प्रोडक्शन यूज करें. मैं सबसे पहले लास्ट वाला प्रोडक्शन ये वाला यूज कर रहा हूँ. सो A0 इज ड्राइविंग A. सो A विल बी द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. सो A विल बी ए वर्ड इन दिस लैंग्वेज. ऑल वर्ड्स एंडिंग विद A. इज इट? सो ये लैंग्वेज मेरी होगी A. इज इट? इसके बाद आप देखिए, सपोज अगर मैं इस A को नहीं यूज करता, मैं A0 से सपोज A1 इसको यूज करता, A1 बनता मेरा. इज इट? अब मेरे पास चूंकि वेरिएबल है A1, अब मुझे A1 को रिप्लेस करना है. ठीक है, A1 को मैं किससे कर सकता हूँ? या तो इससे कर सकता हूँ, या इससे कर सकता हूँ, या इससे कर सकता हूँ. अगेन मैं तीसरा वाला ऑप्शन लेता हूँ A. सो आई विल रीच टू A. नाउ इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स ओनली, सो इट विल बी ए वर्ड इन द लैंग्वेज A. इज इट? सपोज मैं A1 भी नहीं करता, मैं A0 से शुरू करता हूँ और पहली बार मैं अप्लाई करता हूँ BA0. इज इट? और उसके बाद फिर इस A0 के लिए मैं A वाले को यूज करता हूँ, तो आई विल बी एबल टू जनरेट BA. So I will be this. ये सारे वो जनरेट करता चला जा रहा हूँ. इसी तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स अगर जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे आप सारे वर्ड जो A से एंड होते हैं वो जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास कोई भी रैंडम वर्ड है, B A B A B B B A. Suppose this is the word. This I want to generate because this is a word ending with A, so it should be the part of the language. It should be, I should be able to generate this word from this set of production P. From this grammar G, I should be able to generate this word. तो अगर ये वर्ड मुझे जनरेट करना हो तो मैं इससे कैसे ड्राइव करूंगा? आप देखिए, मैं A से स्टार्ट करता हूँ, A0 से स्टार्ट करता हूँ. उसके बाद चूंकि मुझे यहाँ B जनरेट करना है, so I will be using this production BA0. So BA0. Is it? अब पहला B तो जनरेट हो गया, अब मुझे अगला फिर B चाहिए. अब देखिए, अगला B चाहिए तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं कर सकता. आई एम बाउंड टू यूज दिस. ओके, अगेन आई विल बी यूजिंग दिस. इट विल बी BA0. इस A0 की जगह मैंने क्या यूज किया? वापस BA0 यूज किया. इज इट? उसके बाद अब A0 है. अब मुझे अगला वर्ड अगला क्या लेटर जनरेट करना है? दिस A. ओके, अब मुझे A चाहिए तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको यूज करूं या इसको यूज करूं. अगर मैं इसको यूज करता हूं तो मेरा वर्ड यहीं पे फिनिश हो जाएगा, BBA यहीं पे फिनिश हो जाएगा मेरा वर्ड. बट अभी मेरा वर्ड फिनिश नहीं होना है. सो इसका मतलब मुझे ये A यूज नहीं करना है, मुझे इस वाले A1 को यूज करना है. इज इट? सो मैं क्या कर रहा हूँ, B तो मेरे पास आ गया और इस A0 की जगह मैंने क्या यूज किया? A1, ये वाला प्रोडक्शन यूज किया. सो A1. इज इट?
A1, अब देखिए मेरे पास A1 आ गया। जब भी मैं A जनरेट कर रहा हूँ आई एम मूविंग टू A1, और जब भी मैं B जनरेट कर रहा हूँ आई एम मूविंग टू A0, यू कैन सी। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक मेरा वर्ड जनरेट हो गया। अगला भी मुझे क्या चाहिए, A चाहिए। अब A1 से A जनरेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला या ये वाला। अगर मैं ये वाला यूज करता हूँ तो मेरा वर्ड यहीं पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि A1 हट करके केवल A आ जाएगा। इज इट? जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी वर्ड आगे और बढ़ाना है। सो मीन्स आई विल बी यूजिंग दिस वन, सो आई विल यूज अगेन A1, सो इट विल derive BB A1, इज इट? अब वापस मेरे पास A1 है, यहाँ तक मैं जनरेट कर चुका हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। अब A1 पर मैं हूँ और मुझे B चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन में इस वाले प्रोडक्शन को यूज करूँ, क्योंकि इन दोनों को यूज करूँगा तो क्या आएगा, A आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, B। सो आई विल यूज BA0, इट विल जनरेट BB AA BA0। तो आप यहाँ तक जनरेट कर चुके, देखिए। इसी तरह से आप देखिए अब A0 पे पहुँच गए। अब A0 पे अगर आप पहुँच गए, आपको क्या चाहिए, A चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। अगर लास्ट A होता तो मैं इसको यूज करता, अदरवाइज इसको यूज करूँगा। तो आई विल कीप ऑन डूइंग माई डेरिवेशन इन दिस वे, एंड यू विल सी दैट you will be able to generate this word. So this I am leaving as home exercise for you, and you can see that any word which is ending with A, you will be able to generate using this particular grammar. Is it clear, class? So this grammar is generating the same language which is being generated, which is being recognized by this particular FA. That is the all words ending with A. Is it clear, class? Class. Your fast response will save time. Is anyone listening? Yes, sir. So this is our first example. Now I am taking the second example. This one. Okay. So let me change the color. I will take the suppose green color. अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये पर्टिकुलर FA है। अब देखिए पिछली बार जो मैंने लिया था दिस वाज DFA, दिस वाज DFA, बट ये जो मैं ले रहा हूँ इट इज NFA. You can see that it is NFA. So now I am applying my process to an NFA, meaning thereby I will test whether my process work for NFA as well or not. Okay. So NFA मैंने अप्लाई किया। अब देखिए Q0 से A पर मैं Q0 पे भी रह सकता हूँ और Q1 पे भी जा सकता हूँ। Q1 का A और B किसी पे भी ट्रांजिशन है ही नहीं, so it is simply an NFA. And again this NFA is for which language? All words ending with A. Okay. आप देखिए A और B जब तक आपको मिलते रहेंगे you will consume here, and last A will lead you to the final state. Okay, so all words ending with A will get accepted over this FA. So I'm not explaining this a lot, you all understand this. So all words ending with A is represented by this NFA. अब इसको मुझे ग्रामर में कन्वर्ट करना है, so I will convert it to the grammar G. G will be equal to, हर स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल बनाइए, Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग A0, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग A1, देन AB विल बी द अल्फाबेट, सेम वन, सेट ऑफ प्रोडक्शन P आपको फाइंड आउट करना है, और S क्या होगा आपका जो स्टार्ट स्टेट है Q0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है, यानी कि A0 विल बी द स्टार्ट वेरिएबल. सो दिस विल बी योर G. अब इसमें अगेन आई हैव टू फाइंड P, सो आई विल फाइंड P. व्हाट विल बी P? ओके, P के देख लेते हैं, P के क्या प्रोडक्शंस आएंगे. सो एक एक करके इसके जो ट्रांजिशंस हैं उनको प्रोसेस करना शुरू करते हैं. Q0 on A is going to Q0, which is a non-final state, so rule 1 will be applicable. So Q0 to Q0, यानी कि A0 to A0, A0 to A0, किस पे? A पर. So that's why I will write A here. Okay. Similarly, जब मैं B वाले को प्रोसेस करूंगा तो अगेन Q0 to Q0 on B, यानी कि A0 to A0 on B. So the second production will be A0 to A0 on B. Is it? तो मैंने ये दोनों प्रोसेस कर लिए, चूंकि नॉन फाइनल स्टेट थी तो केवल यही प्रोडक्शंस आए. अब मैं इस तीसरे प्रोडक्शन को फॉलो करता हूँ. अब मैं किसको फॉलो करता हूँ? इस तीसरे प्रोडक्शन को फॉलो करता हूँ. ये तीसरा प्रोडक्शन मेरा क्या था?
Q0 on A is going to Q1. Means on A I am going to Q1. So on A I am going to Q1. So Q0 to Q1 यानी कि A0 to A1. So A0 to A1. On which symbol? A. So A1 ये आ गया. लेकिन चूंकि अब मैं एक फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूं, so मुझे क्या ऐड करना? Q0 का corresponding variable यानी A0 to A. This also has to be included. So A I will include here. Is it? So ये मैंने इसको प्रोसेस किया तो ये सारे के सारे बने. अब चूंकि Q1 से कोई ट्रांजिशन जा ही नहीं रहा, तो यानी कि जितने भी ट्रांजिशन इस मेरे FA में थे वो सब मैंने प्रोसेस कर लिए. मुझे ये 4 प्रोडक्शन रूल्स मिले. So this is my grammar corresponding to this. Obviously you can compare that these two grammars are different. इसमें प्रोडक्शंस डिफरेंट हैं, इसमें प्रोडक्शंस डिफरेंट हैं, बट ये दोनों ग्रामर सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलर ग्रामर कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन लैंग्वेज इज नॉट यूनिक, मे नॉट बी यूनिक. देयर मे बी मल्टीपल डिफरेंट ग्रामर्स फॉर द सेम लैंग्वेज. जैसे कि सेम लैंग्वेज के लिए मल्टीपल एफएज हो सकते हैं, सेम लैंग्वेज के लिए डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं आप. उसी तरह से सेम लैंग्वेज के लिए डिफरेंट ग्रामर्स आप लिख सकते हैं. अब अगेन हम इंश्योर करेंगे कि जो ग्रामर हमारे पास आई, दिस ग्रामर इज करेक्ट. दिस इज जनरेटिंग ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए. अब देखिए, अगर कोई भी वर्ड आपको जनरेट करना, देखिए आपको कोई भी वर्ड, जैसे यही वर्ड था बी बी ए बी, सपोज ये मैं जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, यही वर्ड जनरेट कर रहा हूँ. सो बी, जब तक मुझे बी चाहिए होगा, A0 से मैं शुरू करूंगा. आई विल बी यूजिंग दिस प्रोडक्शन BA0. तो जितने भी बी मुझे चाहिए होंगे उतने बी जनरेट हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली मेरे पास वेरिएबल क्या रहेगा? A0. इज इट? उसके बाद जितने भी मुझे A चाहिए होंगे आई विल बी यूजिंग AA0. इज इट? और वेरिएबल क्या रहेगा? A0 ही रहेगा मेरे पास. इज इट? उसके बाद लास्ट मेरा जो A होगा उसमें मैं A0 से A ये वाला प्रोडक्शन यूज करके उसमें कन्वर्ट करूंगा. यानी कि ऑल वर्ड्स जो कि A से एंड होते हैं उनको मैं एक्सेप्ट करा सकता हूँ. अब इसमें आप चाहें तो यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्शन को भी. आप कहेंगे A अगर मुझे जनरेट करना, मेरे पास 3 ऑप्शन है. एक तो ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन. ये ऑप्शन तो क्लियर है, जब लास्ट A हो तभी यूज करना. इज इट? इसी तरह से अब बाकी इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं. तो आप देखिए, अगर आप कभी भी इस वाले ऑप्शन को यूज करते हैं A1, सो यू विल रीच टू द वेरिएबल A1. लेकिन वेरिएबल A1 का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है आपके पास. तो अगर एक बार आप वेरिएबल A1 पे पहुंचे तो आप वहीं पे स्टक कर जाएंगे. आप वहीं पे क्या हो जाएंगे? स्टक कर जाएंगे और आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि A1 को रिमूव करने का कोई भी प्रोडक्शन रूल आपके पास नहीं है. तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? अनसक्सेसफुल हो जाएगा. बट अगर डेरिवेशन एक अनसक्सेसफुल है तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ड जनरेट नहीं हो सकता. हो सकता है आपने कुछ और ऑप्शंस जिनसे वर्ड जनरेट हो सकता है वो छोड़ दिए हो. तो जैसे आप A1 की जगह हमेशा अगर A0 यूज करें तो हमेशा आपके पास A0 बना रहेगा और A0 को रिमूव करने का आप पे हमेशा मेथड है. A0 को आप A से रिमूव कर सकते हैं. इन दैट केस योर डेरिवेशन विल बी सक्सेसफुल. सो एक तरह से अगर आप देखें तो ये वाला जो प्रोडक्शन रूल है, ये प्रोडक्शन रूल यूजलेस है. ये प्रोडक्शन रूल क्या है? यूजलेस है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NFA में हमारे मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक स्ट्रिंग के. कुछ पाथ सक्सेस पे ले जाएंगे आपको और कुछ पाथ आपको फेलियर पे ले जाएंगे. NFA में हमारी डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है कि जितने भी हमारे फेल पाथ हैं उनको हम इग्नोर करते हैं. अगर एक भी सक्सेस पाथ है तो हम उसको फॉलो करते हैं. DFA में एक ही पाथ होता है तो इसलिए कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो DFA में हमेशा जब भी आप DFA के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर लिखेंगे, हमेशा आपको जो है ऐसा होगा कि एक ही रूल एप्लीकेबल होगा उसको जनरेट करने के लिए. अगर वो जनरेट हो रहा होगा तो जनरेट होगा, नहीं जनरेट हो रहा होगा तो नहीं जनरेट होगा. जबकि NFA से अगर आप ग्रामर बना रहे हैं रेगुलर ग्रामर, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस से आपका वर्ड डराइव हो, कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस से वो वर्ड डराइव नहीं हो. तो अगर किसी भी सीक्वेंस से हमारा वर्ड डराइव होता है तो दैट इज ए सक्सेसफुल डेरिवेशन एंड वर्ड विल बी द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. इज इट? तो आप देखिए यहाँ पे भी मेरे ऑल वर्ड्स एंडिंग विद ए विल गेट एक्सेप्टेड, but these two are different grammars because production rules are different, but they are representing the same language. I hope this point is clear. और कहने का पर्पस एक और है कि हमारा प्रोसेस DFA और NFA दोनों पे ही एप्लीकेबल है. Is it clear, class? Class, it is clear? हम अपने प्रोसेस को DFA पे भी अप्लाई कर सकते हैं, NFA पे भी अप्लाई कर सकते हैं. दोनों
दोनों से हमें जो भी ग्रामर मिलेगी दैट विल बी द करेक्ट ग्रामर. वी मूव टू दी थर्ड एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी तक हमने जो भी रूल अप्लाई किया तो रूल 1 अप्लाई हुआ है या रूल 2 अप्लाई हुआ. हमारे पास 3 रूल थे पिछला जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया. थर्ड रूल कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ. तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें मेरी स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट भी है. सो दैट आई कैन शो यू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द थर्ड एग्जाम्पल एज वेल. ओके, सो अब देखिए ये इसमें एक ही स्टेट है Q0, ए बी है, डेल्टा मुझे दिया हुआ है Q0. से ग्रामर जी में कन्वर्ट करना. ओके, सो लेट मी कन्वर्ट इट टू दी ग्रामर जी. ओके, सो जी विल बी एक वेरिएबल है, वो एक स्टेट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वेरिएबल होगा A0 एंड दिस विल बी द स्टार्ट वेरिएबल एज वेल. ओके, मेरा अल्फाबेट क्या होगा AB, सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा P और स्टार्ट सिंबल मेरा क्या होगा A0. दैट इज द ओनली वेरिएबल अवेलेबल इन माय ग्रामर. ओके, अब मैं इसके प्रोडक्शंस को जो है इसके ट्रांजिशंस को प्रोसेस करता हूँ. सो Q0 ऑन A टू Q0, Q0 ऑन A टू Q0, Q0 से Q0 पे आना है, यानी A0 से A0 पे आना है ऑन A. ओके, सो A0 से, ये अगर सेट ऑफ प्रोडक्शन लिख रहा हूँ मैं, A0 से मुझे A0 पर ही आना है ऑन A. सिमिलरली अब मैं जो है इसको प्रोसेस अच्छा A0 ऑन A, चूंकि Q0 मेरी क्या है फाइनल स्टेट भी है. ओके, तो चूंकि मैं एक फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूं तो दैट्स व्हाई आई विल बी एडिंग A0 टू A आल्सो. सेकंड रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है. देखिए जब मैंने Q0 ऑन A Q0 इसको प्रोसेस किया और एक फाइनल स्टेट पे पहुंचा तो मेरा रूल नंबर 2 अप्लाई हुआ. रूल नंबर 2 क्या करेगा, दो प्रोडक्शंस को इंड्यूस करेगा. इज इट? इसी तरह से मैं अगले को प्रोसेस कर रहा हूँ B वाले को, Q0 on B moving to Q0. Again I am reaching to a final state. So again rule number 2 will be applicable and my two productions of the form BA0 and B will be included. Okay. इसके बाद मेरा रूल नंबर 3, क्योंकि मेरी स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट भी है. सो A0 के प्रोडक्शन में मुझे क्या और इंक्लूड करना है, एप्सिलॉन और इंक्लूड करना. सो एप्सिलॉन विल बी इंक्लूडेड. सो दिस विल बी द ग्रामर कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन FA. आप देखिए इससे ऑल वर्ड्स ओवर A एंड B. लैंग्वेज क्या है मेरी, लैंग्वेज इज ऑल वर्ड्स ओवर A comma B. So that I will be able to generate or not. Just start from this A0. A0 से देखिए एप्सिलॉन डेरिवेबल है, so epsilon will be there. A0 से देखिए A डेरिवेबल है, so A will be there. A0 से देखिए B डेरिवेबल है, so B will be there. और बाकी आगे कोई भी वर्ड जनरेट करना हो, जहां भी आपको A चाहिए होगा you will use A0, जहां भी B चाहिए होगा you will use BB0. So any combination of A's and B's you can generate through these two productions. Okay, और जहां भी A0 आपको खत्म करना होगा so या तो A का यूज करके या B का यूज करके एप्सिलॉन का यूज करके आप उसको खत्म कर सकते हैं. यानी कि एनी वर्ड ओवर A and B you will be able to generate. Suppose you want to generate double A, so we'll use AA0. AA0 यूज करेंगे, उसके बाद A0 को A से रिप्लेस कर लीजिए. ठीक है, so you will be able to generate double A. या AA0 को दो बार यूज करिए तो डबल A आ जाएगा, फिर A0 को एप्सिलॉन से आप रिमूव कर लीजिए, then also you will be able to generate double A. Similarly AB, पहले AA0 यूज करिए फिर BA0 यूज करिए तो AB जनरेट हो जाएगा, फिर A0 को एप्सिलॉन से कर लीजिए, या पहले AA0 यूज करिए और फिर A0 को B से रिप्लेस कर दीजिए तो भी आप AB जनरेट कर पाएंगे. एंड सो ऑन. इसी तरह से एनी वर्ड ओवर A and B you will be able to generate. Is it? So this is the example where I have applied the rule number 3 as well. Rule 3 as well. Is it? So I hope it is clear, class. It is clear, class. मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सुन नहीं रहा है, बहुत लेट रिस्पॉन्ड करते हैं. क्विक रिस्पॉन्ड किया गया है भाई. Okay, now I'm taking one more example. If you look at this FA, this is an epsilon NFA. Let me check whether my process will work for epsilon NFA also or not. Just look at, अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो फटाफट से जो है देखिए, क्योंकि Q2 तो अब मैं G नहीं लिख रहा, क्या होगा, तीन स्टेट है तो तीन वेरिएबल होंगे. ठीक है, बाकी P और S और Q0 स्टार्ट स्टेट है तो Q0 के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल मेरा स्टार्ट वेरिएबल को चलिए लिख लेते हैं. G will be equal to
A0, A1 and A2 corresponding to each state. Okay. Then alphabet will be 0, and then P will be the production system, and S will be the symbol corresponding to the start state. Start state is Q0, so Q0 corresponding symbol है A0. This will be the start symbol. This will be G. अब मैं प्रोडक्शन लिखना शुरू करता हूँ. देखिए Q0 0 पे Q0 पे जाना है, यानी कि A0 से A0 जाना है 0 पर. ओके, प्रोडक्शन सेट A0 से 0 पर A0 पे ही जाना है. इज इट? ओके, दिस इज वन. उसके बाद एप्सिलॉन. सो ऑन एप्सिलॉन आई एम मूविंग टू Q1, यानी कि Q0 से Q1 यानी कि A0 से A1 मूव करना है ऑन एप्सिलॉन. अब मैं एप्सिलॉन यहाँ लिखूँ या ना लिखूँ वही बात है, तो एप्सिलॉन का कोई मतलब नहीं. इट इज सिंपली A1. अब जैसे ये सिंपली A1 हो जाता है, सो इट इज अ सिंगल वेरिएबल. इट इज अ सिंगल वेरिएबल. It is a variable which is the single one. So it is a single variable. क्या मेरे रेगुलर ग्रामर में इस तरह का प्रोडक्शन शामिल हो सकता है, वेरिएबल टू वेरिएबल? नो, इट इज नॉट अलाउड. मेरे रेगुलर ग्रामर में केवल दो तरह के प्रोडक्शन है. पहला टर्मिनल एंड वेरिएबल, और दूसरा केवल टर्मिनल. केवल वेरिएबल वाला जो प्रोडक्शन है, ये इस तरह का प्रोडक्शन अलाउड नहीं है. तो अगर मैं एप्सिलॉन ट्रांजिशंस का यूज करता हूं तो मेरे इस तरह के प्रोडक्शंस जनरेट होंगे जिसमें मेरा केवल एक वेरिएबल होगा. इज इट? सो माई दिस प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एप्सिलॉन NFA. सो ऑन एप्सिलॉन NFA process is not applicable because I will not generate a regular grammar. Is it clear, class? Is it clear or not? यस सर. ओके, लेकिन अब आप कहेंगे कि मेरा ये FA है. FA है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर ग्रामर भी होगी. इज इट? बट मैं इसको रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा. ओके, सो ये एप्सिलॉन NFA पे भले ही एप्लीकेबल नहीं है, बट ये NFA पे एप्लीकेबल है. अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने आगे की तरफ ये फिगर बनाई है, ये इसी एप्सिलॉन NFA के कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल NFA है जिसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशंस नहीं है. इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेम लैंग्वेज. 0 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक. देखिए 0 पर सारे 0 एस्ट्रिक, 1 पे आप यहाँ पहुंचे, फिर 1 एस्ट्रिक. देखिए ये फाइनल स्टेट है, तो एवरीथिंग विल गेट एक्सेप्टेड, ऑल जीरोस विल गेट एक्सेप्टेड. So अगर ये भी फाइनल स्टेट है तो all zeros and followed by all ones will get accepted. Okay, all zeros followed by all ones followed by all twos will get accepted. This is also a final state. Is it? Okay, अगर zeros के बाद ones नहीं है, सीधे twos हैं, तो twos पे आप यहाँ पहुँचेंगे and this will get accepted. Is it? So all this is the NFA corresponding to the same language. It is epsilon NFA. It is normal NFA. It is clear, class? ये NFA correct है मेरा. इज इट क्लियर, क्लास? ये NFA मेरा करेक्ट है. अब इस NFA को मैं रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग माय मेथड. रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकता हूँ यूजिंग माय मेथड. जैसे मैंने अभी पीछे NFA पे अप्लाई किया था, आपने देखा था, वैसे ही इस पे आप अप्लाई कर दीजिए. इसमें सारे प्रोडक्शन आपको किस फॉर्म के मिलेंगे? या तो वेरिएबल टू ए टर्मिनल वेरिएबल या फिर वेरिएबल टू ए टर्मिनल. ओके, सो यानी कि इस NFA को आप रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यानी कि अगर एप्सिलॉन NFA है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर आपको चाहिए, सो फर्स्ट यू रिमूव एप्सिलॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम दैट. या तो उसमें से एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करके NFA बना लीजिए, या फिर उसको सीधे आप DFA में कन्वर्ट कर लीजिए. अगर DFA में कन्वर्ट कर लिया, देन ऑल्सो DFA यू कैन कन्वर्ट टू दी रेगुलर ग्रामर. एप्सिलॉन NFA को DFA में कन्वर्ट करने का मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इज इट? जैसे सबसेट कंस्ट्रक्शन हमने किया था NFA से DFA को कन्वर्ट करने के लिए, वैसे ही एप्सिलॉन NFA को DFA में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. बस केवल फर्क क्या होगा कि हर स्टेज पे हमें एप्सिलॉन क्लोजर को कंसीडर करना होगा. So once we will get DFA, we can convert it to the regular grammar, or anyhow we remove the epsilon transitions and we convert it to the NFA. Then also we can find the regular grammar corresponding to it. It is clear, class? Class, it is clear? My process is applicable to DFA and NFA, but not applicable
to epsilon NFA. अगर epsilon NFA के corresponding regular grammar चाहिए तो first convert it to NFA or DFA, and then apply process to find the regular grammar. Is it clear, class? Yes, sir. So we have seen one construction. If FA is given to us, we can always convert it to the corresponding regular grammar. Is it? So I am closing at this point of time because time काफी कम है. अगला point हमारा cover नहीं हो पाएगा इतने कम समय में. So this we will cover on next lecture. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we can close. Class, is there any doubt? Or we can close?